Hello students, today we are going to do lesson 9 of geography, that is India climate. In this chapter we will study about the climate of our country. Before starting, first of all, let me clear the difference between weather and climate. Children, what is weather? Weather is the daily state of the atmosphere at a place, means it is reported on a daily basis. Every day weather changes. Sometimes it is hot, sometimes it is rainy, sunny, cloudy, windy. So that is called weather. It changes at short intervals. You can say that just now it was sunny, and after an hour you will see clouds in the sky and it starts raining. That is called weather. But climate is the average weather pattern at a place for more than 30 years or so. It is called climate. Climate remains same for a long period of time. What do you mean by that? The same time, when the same time type of weather pattern remains at one place every year, in the same months the same type of weather is found, that is called climate. As in our country, for 6 months the climate is hot, and the other 6 months the climate is cold. So it has been from so many years. ये हर साल ऐसे ही होता है, गर्मी के फिक्स मंथ्स हैं और सर्दी के फिक्स मंथ्स हैं. So it has been recorded from so many years. It is not changing. That is called climate. India is located within the tropical and the subtropical latitudes. Now, which are the tropical latitudes? The latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and also some area of subtropical latitude is covered by our country. So that is why it is influenced by monsoon winds. So in our country there is monsoon type of climate. Now, the factors which affect the climate are latitude, altitude, distance from the sea, relief features, mountains and hills, upper air currents, and prevailing winds. Now, first of all, first factor is latitude. Latitudes, as I have already explained in the previous chapters, there are 5 important latitudes: equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole, South Pole. Now, our country lies between the latitude 8 degree north to 37 degree north. Now, the climate of a place depends upon the distance from the equator, as we have done heat zones in that chapter, that the place which is near the equator that receives vertical rays of the sun, and here the climate is very hot, and as we move away from the equator the rays of the sun become slanting and the temperature goes on decreasing. So the climate of every place depends upon the distance from the equator. For example, Delhi and Chandigarh, they are far away from the equator, so they have hot summers and cold winters. But in south, as our southern part of our country is near the equator, now keep it in mind and make it clear that equator divides the whole earth into two equal parts, not India. India is divided into two equal parts by Tropic of Cancer. Tropic of Cancer passes almost through the middle of our country, and our country is completely in the northern hemisphere. पूरा का पूरा हमारी जो कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दैट इज़ अबव द इक्वेटर. सो इसीलिए जो हमारा साउदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का वो इक्वेटर के नज़दीक है, इसीलिए जो साउथ इंडिया है वहाँ पर सारा साल ही तकरीबन गर्मी रहती है. सो दिस इज़ हाउ लैटिट्यूड इफेक्ट्स द climate. Now next is altitude. Altitude means height.
Now, the temperature of a place depends upon the altitude. Now, when we go on hill stations, we find the weather is very cold there. When we in June, July, when it is very hot on northern plains, it is cool on the hills. Why? Because hills are situated or located on a height. As we move above, as we move higher and higher, the temperature goes on decreasing. It decreases 1 degree Celsius after every 165 centimeter. हम 165 सेंटीमीटर ऊपर गए, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. उससे आगे और 165 डिग्री सेंटीमीटर ऊपर गए, 1 डिग्री और कम हो गया. सो in this way the temperature goes on decreasing as we move higher. So that is why the places which are located on the hills like Shimla, Mussoorie, Srinagar, they are cool throughout the year. Next factor is distance from the sea. Now the places which are located near the sea, that places are called coastal areas. So they are having moderate temperature throughout the year because sea has a moderating influence. Chennai, Mumbai, they are coastal areas. They are located near the sea. That is why here the temperature is moderate. Moderate means neither too hot nor too cold. Cold. Here the temperature is never extreme. But as we move away from the sea, the temperature becomes, the climate becomes extreme. Like northern plains, they are, we are living in the northern plains, so northern plains are very far away from the sea. That is why we have extreme type of climate. Extreme climate means very hot in summers and very cold in winters. Next factor is relief features. Relief features means the type of land. Now uh, in India we have so many kinds of, can say, relief features. At some places there are plains, some places are plateaus, some are deserts, some are mountains. So all the places are influenced, the climate of all the influenced the climate of all the places is influenced by the type of land, type of physical feature where it is situated. Now, India has monsoon type of climate because of Himalayan mountain ranges. Now, Himalayas are the relief features, physical feature of our country. So, they don't allow the cold Siberian winds to enter in our country. That is why our winters are not so severe. Now, the winds which carry moisture with it, they enter India and they strike to the with the mountains and give rain in our country. India gets rain in June, July and August, whereas the other side of the Himalayas remains rainless. Now, what is this? This there is two type of, you can say, areas in the Himalayas. One is leeward area and one is windward area. Now, students, when the wind blows and it has lot of moisture in it, and when it strikes one side of mountain, on that side of mountain there will be heavy rainfall because it will strike the mountain and will pour its moisture there only. Most of the moisture is poured on that side only. That is called windward side. And when this wind will go to the other side of mountain, it will कैरी हार्डली एनी मॉइस्चर, और उस साइड पे, दूसरी साइड पे जो है माउंटेन के, बारिश कम होगी, एंड दैट इज कॉल्ड लीवर्ड साइड. The Western Ghats in our country, they influence rainfall in the Western India. The force the rain bearing winds to shed the moisture over their western slope. अब जो रेन बेयरिंग विंड्स कौन सी होती हैं,
जिस विंड में मॉइस्चर होता है, वो जब वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से टकराती हैं तो वहाँ सारा मॉइस्चर अपना शेड कर देती है, मतलब वहाँ रेनफॉल अपनी पूरी बरसा देती हैं। और जो मुंबई है वो वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ है, इसलिए जब तक वो विंड मुंबई तक पहुँचती है वहाँ पर सॉरी मुंबई जो है वो अरेबियन साइड को फेस करती है, अरेबियन सी को फेस करती है, इसलिए उसमें वहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो प्लेसेस वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ है लाइक पूना है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। अब विंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दिस पॉइंट। अब एक विंड ने मॉइस्चर कलेक्ट किया सी से, कहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करेगी? किसी वाटर बॉडी से कलेक्ट करेगी। अब यहाँ पर जो विंड है वो अरेबियन सी से मॉइस्चर कलेक्ट कर रही है और वो वेस्टर्न घाट की तरफ चल पड़ी। अब वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप की तरफ जो अरेबियन सी को प्लेस फेस कर रही है, वो कौन सी प्लेस है? मुंबई है। अब ये जो विंड अरेबियन सी से मॉइस्चर कलेक्ट करके चली, वो वेस्टर्न घाट से जाकर टकराई और मुंबई में ज़्यादा बारिश हो गई। अब ये विंड जब वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ गई, ईस्टर्न पार्ट की तरफ गई, तो वहाँ तक जाते जाते उसका सारा मॉइस्चर जो था वो ख़त्म हो गया, बहुत कम मॉइस्चर रहा उसमें। इसलिए जब वो पूना पहुँची विंड, तो उस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें बहुत कम मॉइस्चर रह गया और वहाँ पर इसलिए रेनफॉल कम हुई। सो दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। मीन्स Mumbai is situated on the windward side of Western Ghat and Pune is situated on the leeward side of the Western Ghat. Next factor is wind. Now as monsoons have arrived in our country, we can see the monsoon winds. These are seasonal winds. अब ये जून जुलाई में हमारी कंट्री में एंटर करती हैं और बहुत सारी रेनफॉल लेकर आती हैं। इसी तरह से in winters, the winds which blow from the northwest, they cause cold waves in North India. वो बहुत ठंडी हवा होती है और वो हमारी कंट्री को ठंडा कर देती है। इसी तरह से जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, बहुत गर्म हवा चलती है और वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है और उस गर्म हवा को हम क्या बोलते हैं? लू। So these were all the factors which affect the climate. Now the cycle of seasons. Now there are 4 kinds of seasons in our country: winter, summer, advancing monsoon and retreating monsoon. Now winter season, it starts from middle of November and continues till the middle of March. Now in northern India, winters are more सीवियर, ज़्यादा ठंड होती है साउथ इंडिया से। क्यों? मैंने पहले भी इसका रीज़न बताया, क्योंकि जो साउथ इंडिया है वो इक्वेटर के नज़दीक है एंड नॉर्थ इंडिया इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। देन समर सीजन. Summer season, it remains from the middle of March to June. The rays of the sun, they fall vertically on the Tropic of Cancer during this period and the temperature rises. So as we have done in the heat zones, the places which are near the equator, they are more hot. So the northern hemisphere is very hot in summers. The temperature goes sometimes more than 45 degree also, and as I have already explained that loo blows in the summer season in northern part of our country. Now there is a phenomena of the wind, blowing of wind. I will explain you the pressure, wind pressure here. Now what happens beta, the places which are very hot, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर क्या होता है,
हवा हल्की हो जाती है गर्मी से, और हल्की होने की वजह से वो हवा ऊपर उड़ने लगती है, और वहाँ पर कौन सा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इसीलिए गर्मियों में बहुत आंधियाँ चलती हैं, अंधेरी आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से जो हवा है वो थिन हो जाती है, और वो हल्की हो जाती है, और वो ऊपर उड़ती है। वहाँ पर प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर होता है। एंड द प्लेसेस विच आर कोल्ड, जहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ पर हवा जो है वो थिक हो जाती है, भारी हो जाती है, और प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, और हवा फिर नीचे की ओर आने लगती है, अर्थ की तरफ आने लगती है। प्रेशर जो है हवा का वो अर्थ की ओर ज़्यादा जाने लगता है, और गर्म जगह पर जो प्रेशर है वो हवा का ऊपर ज़्यादा रहता है, लो प्रेशर रहता है। मीन्स हॉट प्लेसेस पे लो प्रेशर होता है, और कोल्ड प्लेसेस पे हाई प्रेशर होता है। अब जो विंड का ब्लो करने का फिनोमिना होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब जहाँ सो हाई प्रेशर, जहाँ पर सर्दी होगी वहाँ से हाई प्रेशर से विंड चलेगी और लो प्रेशर की तरफ आएगी। जिस जगह पर लो प्रेशर होगा उस तरफ को आएगी, मतलब ठंडी जगह से हाई प्रेशर से चलेगी और लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। दिस इज द फिनोमिना ऑफ द wind. Now there are thunderstorms, local thunderstorms in Assam and West Bengal that are called Kal Baisakhi, and there are pre-monsoon showers in Kerala and Karnataka. These are called mango showers because they help in the ripening of mangoes. Now we will talk about the monsoon. अब मॉनसून्स जो हमारी कंट्री में आए एंटर किए हुए हैं, ये क्या है? मॉनसून्स आर द विंड्स। अब ये भी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर हमारी कंट्री में एंटर होते हैं? ये भी, इसके पीछे भी विंड का प्रेशर काम करता है। नाउ आर कंट्री लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, कि हमारी जो कंट्री पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब क्या होता है, जून से हमारी कंट्री में गर्मी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर क्या कौन सा प्रेशर बन जाएगा? अब जब गर्मी हो गई तो कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पर सर्दी होगी, ठंडी होगी। दिस इज द बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब जो पार्ट सन की तरफ फेस करता है वहाँ पर गर्मी होती है। अब जून से लेके सितंबर तक नॉर्दर्न पार्ट जो है अर्थ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन को फेस करता है, इसलिए हमारी कंट्री में उस टाइम समर्स होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज आएंगी उसमें तब सर्दी गर्मी होगी, लेकिन उस टाइम में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होता है, तो वहाँ पर सर्दी होती है। अब हमारे यहाँ पर गर्मी चल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ पर सर्दी चल रही है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर है और हमारी कंट्री में लो प्रेशर है। अब क्या होता है यहाँ पर, जो हमारी ड्यू टू समर हीट द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द प्रेशर ऑल्सो, द प्रेशर डिक्रीजेस, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है तो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। नाउ द फिनोमिना ऑफ विंड इज दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर से हाई प्रेशर से विंड ब्लो करती है और हमारी कंट्री की तरफ चल पड़ती है, लो प्रेशर की तरफ चल पड़ती है। नाउ the winds blow from the southern hemisphere to the northern hemisphere. They cross Indian Ocean in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये इंडियन नीचे से आती है, साउदर्न हेमिस्फीयर से इंडियन ओशन को क्रॉस करती है और ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, और इक्वेटर को भी क्रॉस कराती हैं और फिर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी कंट्री में एंटर करती हैं। अब हमारी कंट्री का जो नीचे वाला पार्ट है, आप मैप में देखोगे वो कोनिकल है शेप में। अब जब वो यहाँ से एंटर करती हैं तो ये इसके दो पार्ट्स, ये दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती हैं, इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। एक
अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक ब्रांच अरेबियन सी की तरफ चल पड़ती है, दूसरी बे ऑफ बंगाल की तरफ चल पड़ती है। ना अरेबियन सी ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट्स की को टकराती है और वहाँ पर हैवी रेनफॉल करती है। कोस्टल रीजन्स जो वेस्टर्न घाट्स के पास हैं, दे आर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड दे bring heavy rainfall there in these areas. Then these winds, they pass over Gujarat and Rajasthan, and then they reach Himalayas, but they do not cause any rainfall, क्योंकि ये सारी की सारी रेनफॉल कहाँ कर आई हैं, वेस्टर्न घाट्स में कर आई हैं। बट एज दे रीच हिमालयास, जब ये गुजरात और राजस्थान को क्रॉस करती हैं वहाँ पर कोई बारिश नहीं करती हैं, लेकिन जब ये हिमालयास तक पहुँचती हैं और हिमालयास के साथ टकराती हैं फिर वहाँ पर हैवी रेनफॉल करती हैं। दूसरी ब्रांच है बे ऑफ बंगाल, ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है और ये किसको स्ट्राइक करती है, खासी, गैरो एंड जेंशिया हिल्स एंड द ईस्टर्न हिमालयन रेंज। और ये कहाँ पर हैवी रेनफॉल करती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर ये ब्रांच डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब टर्न ले लेती है, ये गंगा वैली की तरफ मुड़ जाती है। एंड ऑल्दो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कीप्स डिक्रीजिंग, अब जैसे जैसे ये, क्योंकि ये अपनी ज़्यादा बारिश कहाँ कर आई है, ये ईस्टर्न पार्ट में करके आई हैं। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है ये ज़्यादा बारिश कहाँ करती हैं, वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये ज़्यादा बारिश कहाँ करती है, ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के। और जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है तो इनकी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो कम होती जाती है। अब जैसे जैसे ये गंगा वैली की तरफ बढ़ती हैं इनका अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो कम होता जाता है, एंड दे मूव वेस्ट टूवर्ड्स दिल्ली एंड पंजाब। दैट इज़ वाई Mawsynram in Meghalaya, they get 10,000 millimeter of range. It is the highest in the world. Cherrapunji is also in the same region. It also gets very heavy rainfall. But as it moves towards the west region, that is Rajasthan, it is Rajasthan, Punjab, जो हमारी वेस्टर्न पार्ट में जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ तक आते आते ये इसकी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो कम हो जाती है, क्योंकि इस हवा में जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा ईस्टर्न जो हिल्स थी वहाँ टकरा कर ये अपना मॉइस्चर पोर कराती हैं, और जब तक ये इधर पहुँचती हैं इनमें बहुत कम मॉइस्चर रह जाता है। Then these monsoon winds, they begin in the first week of June and spread in the whole country by the middle of July. Then they are very can say monsoon winds, they can be irregular. अब कई बार monsoons बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आते हैं, कई बार कम लेकर आते हैं, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, कई बार ड्रॉट्स आ जाते हैं। ड्रॉट्स क्या होता है, सूखा। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड्स आ जाते हैं, कम हो तो ड्रॉट्स आ जाते हैं। सो आवर कंट्री, द एग्रीकल्चर of our country depends mainly on the monsoon season. Then is retreating monsoon. Retreating monsoon means अब ये monsoon wind जब वापस जाती हैं हमारी कंट्री से, अब क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में क्या होना शुरू हो जाता है, हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है क्यों क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो है रिवॉल्व हो रही है, और जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, वो सन से दूर होना शुरू हो जाता है, और साउदर्न पार्ट जो साउदर्न हेमिस्फीयर है जो अर्थ का, वो सन के सामने आना शुरू हो जाता है। इसलिए अब उल्टा हो जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होनी शुरू हो जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होनी शुरू हो जाती है। अब इससे क्या होगा, अब विंड का जो प्रेशर बेल्ट है वो भी इफ़ेक्ट होगी। अब जब पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी थी तो यहाँ पर लो प्रेशर था, साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी थी, वहाँ पर हाई प्रेशर था। अब वहाँ से हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आ रही थी। अब जब मौसम चेंज हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होनी शुरू होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में
गर्मी होनी शुरू होगी तो प्रेशर भी उल्टा हो गया। अब हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लो हाई प्रेशर बन जाएगा और साउदर्न में लो प्रेशर बन जाएगा। अब ये जो विंड मानसून विंड हमारी कंट्री में आई थी, लो प्रेशर की तरफ आई थी, अब ये उल्टी चलेगी क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर हो गया, तो यहाँ से ये उल्टी फिर किस तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब लो प्रेशर कहाँ बन गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में बन गया। सो दिस पीरियड इज द ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट एंड वेट टू कूल एंड ड्राई। अब हमारी कंट्री में भी रिवर्स हो जाता है, जो मौसम है वो चेंज हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में सर्दी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होना शुरू हो जाता है। द रिट्रीटिंग मॉनसून्स व्हेन दे पास ओवर बे ऑफ बंगाल, अब ये वापस जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल से वापस जा रही हैं, वहाँ से मॉइस्चर पिक करती हैं, ईस्टर्न घाट्स को टकराती हैं तमिलनाडु के, और वहाँ हैवी रेनफॉल हो जाती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। सो वहाँ पर फिर हैवी रेनफॉल हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम बे ऑफ बंगाल पर लो प्रेशर होता है, इससे क्या होता है, साइक्लोन्स हो जाते हैं। अब ये जो हवा वापस चली है, अब हाई प्रेशर, हमारी कंट्री में हाई प्रेशर बन गया, अब इसको जहाँ पर लो प्रेशर मिलेगा ये उस तरफ को चलेगी। अब बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर हो गया तो इसलिए ये उस तरफ को चल पड़ती है, तो वहाँ पर फिर कई बार साइक्लोन्स आ जाते हैं। सो दिस इज द, by this we end with the chapter. I hope children, all of you have understood the chapter. Have a good day.